Good morning, and I welcome you students. A very important topic, very important question, and in this topic you can get full marks in the exam because it is not that difficult a topic. Try to understand each and every line, each and every word, and this is very important. What I have written: food chains and webs. Student, there are food chains and food webs. There will be question on that which we are discussing. Again, I am giving a small revision of what was done in the last lecture. What is a food chain? There are food chains. Plants are making and preparing their own food. You are saying they are primary producers, student. And the plants are eaten by a deer, for example, for a cow, by a cow. When what is happening? The deer is eaten by a lion. So what is happening in a forest? There is a food chain. There is a food chain. The energy and nutrients are moving in the ecosystem. What we are saying, food chain describes how energy and nutrients move through an ecosystem. Energy is transformed from one living organism through another in the form of food. What we are looking for, what the living organism is looking for, wants food. But who is preparing food for the living organism? And how the food is prepared? What is the primary source of the food? And that's all we are saying. There are primary producers. What are those primary producers? Green leaf plants. They are producing. Primary consumers. You are what we are consumers. We want food, but where we get food? You are eating vegetables, fruits, you are eating meats also. So primary consumers are there, secondary consumers are there, herbivores and omnivores, all these, and decomposers. And in the end, what happened when everything decayed matter, dead bodies, decomposers are doing their work. And what they are doing, they are breaking down those dead materials into simpler inorganic molecules which become nutrients, and then the cycle continues. So food chain explains which organism eats another organism in the environment. One organism eats another to fulfill the requirement. Food chain is a linear sequence of organisms where nutrients and energy is transformed from one organism to other. This occurs when organism consume another organism. It begins with producer organism, follow the chain and ends with a decomposer organism. The producer and decomposer, this is the beginning and the end. After outstanding the food chain, will realize how one organism is dependent upon another species for its survival. Hi, interesting that food chain shows you how one organism is dependent on the other, and then how the food chain continues. Everything which is born will die, student. One organism is in search of the other organism to survive. So food chains are the reason the food chain continues survival. As we have shown, the series of organisms taking part at various biotic levels from a food chain. What is happening in a forest? These are the green plants, producers, deer, and then this is the tiger which is eating this. And as you see, in a grassland also, this is the sequence, student, of the food chain. And you see in a pond of water, this is the sequence. So all this is important. These are the food chains. Each step or level of food chain forms a trophic level. It's important. A question will be asked here. What is a trophic level? As you will see, what is the basic? First, there are producers, student. These are the green leaf plants which you have. They fix up solar energy and make it available for the primary consumers. For heterotrophs or primary consumers, the herbivores are the primary consumers, and then they are at this higher first level, trophic level, second trophic level, third, and then finally tertiary levels. So consumers come at the second, small carnivores or the secondary at the third, and larger carnivores at the tertiary. Consumers form the fourth trophic level. We have shown you 4 trophic levels of the food chain. How the producers and how it is moving to the tertiary. Important point to note, student, the food chain consists of 4 major parts. What are the major parts of the food chain? Question is like this. What are the major parts of food chain, students? The sun is the initial source of energy. What is sun? All the energy which is there in the universe, the primary source is sun.
sun shines, photosynthesis takes place. Green plants take the sunlight energy, chlorophyll, and manufacture the sugar. And then it is a primary producer, So sun producers, the producers in food chain includes all autotrophs such as phytoplankton, cyanobacteria, algae, green plants. This is the first stage in food chain. Producers make up the first level of the food. So the first level of the food by the process of photosynthesis, what we are saying, these are the green plants or all these, they are the producers. They produce their food and they utilize sun energy, students. Consumers are all organisms that are dependent on plants or other organisms for food. All what we are consumers. So we depend on plants and other organisms for food. So the largest part of food web, as it contains almost living organisms. Okay? Consumers are the largest part of food web because as it contains almost all the living, or it includes herbivores, which are animals that eat plants. What are herbivores, student? Those animals which eat plants. Plants are eaten by herbivores. Carnivores, there are carnivores. This is, then you have carnivores. What are those? Which are carnivores, which are animals that eat other animals. They eat other animals. Other animals, student. Parasites, you have parasites, student. Are those organisms that live on other organisms. So parasites, they live on other organisms by harming them, and by harming them, then there are scavengers, which are animals that eat dead animals. Scavengers. Fourth one, what we are saying? Scavengers. What do they do? They will eat the, which are animals that eat dead animals, carcasses. So here herbivores are known as primary consumers. Herbivores are primary consumers. When I say primary, they will eat the green plants. Primary consumers. And carnivores are secondary consumers. Carnivores, they will eat other animals also. They are secondary consumers. The second trophic level includes organisms that eat producers. First level are the producers, those green plants. And the second level include organisms that eat producers, second level. They'll eat the producers, plants, whatever they are. Therefore, primary consumers or herbivores are organisms in the second trophic level. Primary consumer and herbivores, they are in the second trophic level. First trophic level I've told you, second trophic level. Whatever triangle we have shown you here, you can see producers, then primary consumers, herbivores, and those which eat these producers, then secondary. Secondary are those which which are carnivores. So second trophic level decomposes are the organisms that get energy from dead or waste organic material. This is the last stage in the food chain. Very important question. They will ask you what are decomposers. So they depend on dead organic material and they obtain energy from that. And decomposers are integral part of the food chain. Why they are important? Why they are important, student? Because they convert organic waste material into inorganic material like nutrient-rich soil or land. So organic waste material, organic dead waste material is converted into inorganic student materials which are nutrient rich soil or land. So they are preparing nutrients for the soil to be grown, student, plantation to be done, nutrients.
So decomposers complete a life cycle. They help in recycling the nutrient as they provide nutrients to soil. So these are the nutrients to the soil or oceans also. That can be utilized by autotrophs or producers. So this can be used. These nutrients can be used. Nutrients can be used, student, by producers. Green plants or trees, all those producers who can use these, they use these nutrients or autotrophs. They are also called auto, which prepare their own food. Autotrophs prepare their own food, students. Those green pigment plants are preparing their own food, so they get nutrients from, once the dead material is converted into nutrient-rich soil by the decomposers, thus starting whole new food chain. The question is very important. This question is very important. What is the role of decomposers in food chain? Important question asked so many times, students. So here we have given a complete answer of that. Note down. Note down everything. Descriptive paper means we have to write, student. You should have a practice of writing. This is very important. Write at least the bullet points, the important points you should note down. You don't have to write paragraphs nowadays. Write important points. In the previous chapter on sources of energy, when one form of energy is changed into another, some energy is lost. This is an important point, student. In the food chain, one organism eats another organism to survive, but there cannot be 100% energy transfer. What is happening? Energy, nutrients or energy flow is taking place. And we have studied one form of energy is changed into another, some energy is lost. What we are saying? One form of energy is converted into another form of energy. But 100% conversion not possible. 100% not possible. What will happen? There will be some loss of energy. There will be some loss of energy in every step. Okay, loss to the environment in the form which cannot be used again. There will be some loss of energy. Some form of energy is lost to the environment. The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied, and it has been found that, now this is an important point, student, what has been found? What we are trying to say, study here, question will be asked. The green plants in terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and converts into food energy. First, producers, main producers are your green plants. What they do, student? Green plants, they take energy from the sun energy. Energy is coming from where? Sun. Sun is the main source of energy, student. This sun. How much is that? On about 1% only. 1% of the sun energy. Only 1% of the sun energy is, student, captured here. First point. See the second, when green plants are eaten by, and these green plants are eaten by primary producers, primary consumers, student, primary consumers, then a great amount of energy is lost to the environment. So there is a loss of energy. There is a loss of energy, okay, to the environment. Environment takes some energy, and also, student, when you will digest the food, for example, digestion of the food is going to need energy, student. It's not that I eat something and it get digested. Inside the body, there are organs, there are parts, student. You have a stomach, you have digestive system inside the system, which they need energy to work. They need energy to work. So digestion, food, this will require work. Work has to be done to digest the food, student.
So they will also consume energy. So there will be energy required for digestion. And what happens then? Our body is growing, student. Growth and reproduction. Again, this will need energy. This will also need an energy. So average 10% of the food eaten is turned into its own body. 10% of the food. If you are eating 100, out of that only 10% of the food eaten is turned into our body. It is turned into our body, student. Only 10%. Okay? And made available for the next level of consumer. And that is made for the next level of the consumer. Next level, only 10%. Interesting, 10%. Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaching the next level of consumer. Therefore, you can say that from one level to another level, only 10% will reach. Whatever energy is there, only 10% will leave the next trophic level, each step. Since so little energy is available for next level of consumers, food chain generally consists only of 3 or 4 steps. So what happens? Every time only 10% reaches, 10% reaches, therefore so much energy is being lost. So therefore we only talk of how many steps in food chain? Only 3 or 4 steps. So that much energy is depleting. Energy becomes very, very less after that. The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic levels. So we have talked of only 4 trophic levels. Because after that, student, what will happen? After 4th trophic level, so much energy has been lost that now very little usable energy is available. Very little usable energy remains. So you see that from one trophic level to other, there is a loss of 10%, 10%. After 4 trophic level, it becomes so small that it cannot be used. Therefore, we showed you only producers, primary consumers, secondary, tertiary, and we showed you only 4. How many trophic levels I have showed you? 4 trophic levels. We showed you 4 trophic levels, student. 4 trophic levels. This is an important question which I am talking, loss of energy. There are generally greater number of individuals at lower trophic levels of an ecosystem. The greatest number is of the producer. Lower the level, lower the trophic level. What are we saying? Lower the trophic level. Greater is the number of individuals. Greater is the number of individuals. What we are talking of, any ecosystem you take. Greatest, every ecosystem, what we talked of ecosystem, student. So at a lower trophic level, there will be greater number of individuals. So that means the producers are the largest in number. That means greater number of individuals mean producers. They have the largest number. Producers are largest in number. The length and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms. Each organism is usually eaten by 2 or more kinds of other organisms. Other organisms, student, which in turn are eaten by several other organisms. Then they are eaten by several other. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called food web. So the relationship is not straight. Food chain relationship is not straight, student. ये straight नहीं है.
because as you see, there is a length and complexity of the food chain very greatly. So instead of the straight food chain, relationship can be shown as a series of branching lines. The relationship is not a linear relationship, it is a series of branching line, students, and that is what we call as a food web. This is called a food web. There is a food web, student. Food chain is not a linear relationship, it is a food web. Note it down, note कर लीजिए सारी बातें. क्वेश्चन जब बनते हैं एनसीईआरटी से, कोई भी पेज, कोई भी पैराग्राफ, कोई भी लाइंस को यूज किया जाता है तो फूड वेब बन जाती है. हियर वी आर शोइंग यू फूड वेब. ये कोई लीनियर नहीं है स्टूडेंट, इट इज नॉट ए लीनियर ब्रांच है. देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे दिखाया गया है आपकी एनसीईआरटी बुक में. फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फूड चेन्स. जो फूड वेब होती है स्टूडेंट, फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फूड चेन्स, बहुत सारी फूड चेन्स हमने दिखाई है यहाँ पर, तो ये फूड वेब बन गई. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैसे ये साइकिल फूड वेब चल रही है. ये यहाँ पर पानी के अंदर है और ये इंसेक्ट्स इनसे कर रहे हैं, और ये फिश है, और फिश को कौन ईगल खा रहा है, और इसको ये कैसे देख रहे हैं, लॉयन को खाते हैं ये. और यहाँ पर भी आप देखिए कैसे ग्रास रूट पे फॉग्स हैं, और ये हैं आपके स्नेक्स हैं, और ईगल है. ये ईगल इज टेकिंग 10 स्नेक्स, और फ्रॉग को ये भी खाते हैं, ये भी खाता है फ्रॉग को. इस तरह यहाँ पर देखो ये बर्ड्स शुरू हो गए, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, और ये इसके बाद में ये फूड चेन दिख रही है आपको. स्नेक्स ने इनको भी, ये भी स्नेक्स इनको भी खाता है, और उसके बाद ये ईगल है. इस तरह से यहाँ पर भी दिख रहे हैं फूड चेन. और you can see how different organisms are dependent on others. तो ये रैबिट है, ये खा रहा है इसको. ये ग्रास है, ये खा रहे हैं अपने आपके हर्बीवोर्स एनिमल्स. काउज हैं, ये बफेलोज हैं, और ये डियर हैं, ये सब खा रहे हैं. उसके बाद में ये इनको खा रहे हैं, और इस तरह से ये लॉयन, ये टाइगर है, ये इनको भी खा जाएगा. तो यू कैन सी there is a food web consisting of many food chains. बहुत सारी food chains मिला के food webs बनती है. So this diagram is taken from the NCERT book. You can see that figure 15.3, food web consisting of many food chains. There are many food chains. कोई ये straight relationship नहीं है. As we said, what we are saying, this instead of a straight line food chain relationship can be shown as series of branching lines. Branching lines show की गई हैं हमने, इसे ही फूड वेब कहते हैं. इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट, व्हाट इज द डायग्राम ऑफ शोइंग फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. तो आवर इकोसिस्टम स्टूडेंट, हाउ द एनर्जी फ्लोज. You know, energy is decreasing. Only 10% of the energy reaches the next trophic level. That's what we said. There is a loss of energy. सबसे पहले कौन सा है? सनलाइट. सनलाइट जो है, this is the main source of energy. From here, there are producer. Only 1%. You have said only 1% of sun energy is being used by the producers. वो जो green plants हैं. तो after producers को कौन खा गए? Herbivores, grass, ये जो ग्रीन प्लांट ईटर वाले, डियर और ये काउ, बफेलो, हर्बीवोर्स, प्लांट ईटर्स. और हर्बीवोर्स को कौन खा रहे हैं? कार्निवोर्स. कार्निवोर्स कौन से हैं? जो इन एनिमल्स को खाएंगे. और इसके ऊपर भी एक टॉप कार्निवोर्स हैं जो सबको खा जाएंगे, दूसरों को भी खाएंगे, टॉप कार्निवोर्स. तो इस तरह से एनर्जी फ्लो कर रही है इकोसिस्टम. And you know, only 10%, 10%, 10% reaches. And उसके बाद में फिर एनर्जी डिप्लीट्स सो मच कि अब कुछ बचा ही नहीं. यूजेबल एनर्जी खत्म, एनर्जी है ही नहीं.
From the energy flow diagram, जो अभी हमने आपको energy flow, two things become clear. Firstly, the flow of energy is a unidirectional. Flow of energy is unidirectional. आपने देखा है नीचे से ऊपर जा रही है, unidirectional. ये रिवर्सिबल नहीं है, मतलब आप देख रहे हैं सनलाइट से इधर जा रही है, लेकिन ये सनलाइट को तो नहीं दे रहा एनर्जी, ये सनलाइट तो नहीं प्रोड्यूस करता. प्रोड्यूसर्स कैन नॉट प्रोड्यूस सनलाइट, सनलाइट इज एबल टू गिव द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर डज नॉट गिव इट बैक. तो ये आप देख रहे हैं फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हर्बीवोर्स ये इसको खा गए. अब हर्बीवोर्स से वापस तो प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, प्लांट्स वापस तो नहीं बन जाएंगे डियर से. तो ये यूनिडायरेक्शनल है. क्या है? यूनिडायरेक्शनल. Flow of energy is unidirectional. Energy that is captured by autotrophs does not revert back to solar input, and energy which passes to herbivore does not come back to autotrophs. तो ये सारी जो चेंजेस हैं स्टूडेंट, मैं ये कह रहा हूँ कि ये यूनिडायरेक्शनल इरिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है. ठीक है. As it moves progressively through various trophic levels, it is no longer available to the previous level. तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है तो वो वापस प्रीवियस लेवल के लिए अवेलेबल अब नहीं है, यूज हो गई है. सेकंड, द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल गेट्स डिमिनिश्ड प्रोग्रेसिवली ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, ये नीचे से ऊपर जा रही है एनर्जी का फ्लो, उल्टा नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, वापस नहीं आती, एक ट्रॉफिक लेवल से ऊपर जा रही है इस तरह से. दूसरा क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है. एनर्जी क्या हो रही है? गेट्स डिमिनिश्ड एज यू मूव फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू हायर, हमने कितने दिखाए हैं? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल दिखाए हैं. Only 10% is reaching, the next 10% is reaching. इसके बाद फिर एनर्जी यूजेबल बची नहीं, एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी डिप्लीट हो रही है. So energy is getting diminished progressively because there is a loss of energy. Loss of energy takes place at every step, student. तो ये एनर्जी डिमिनिश्ड होती रहती है. एनर्जी क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, डिमिनिश हो रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. We have shown you only 10% going to the higher level. ये important point है. देखो क्वेश्चन कैसे आया था, समझो. Another interesting aspect of food chain. Food chain बहुत important है. One organism is dependent on other, one organism is eating other organism. लेकिन क्या हो रहा है? प्राइमरी आपने देखा प्रोड्यूसर हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शरी कंज्यूमर है. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद यूजेबल एनर्जी बची ही नहीं, है ही नहीं. An interesting aspect is how unknowingly some harmful chemical enter our bodies and through the food chain. देखो फूड चेन के थ्रू कुछ हार्मफुल केमिकल हमारे बॉडी में चले जाते हैं. How water gets polluted. One of the reason is use of several pesticides and other chemicals to protect our crops and diseases and pests. बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हो. क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स क्यों यूज होते हैं, केमिकल्स क्यों यूज होते हैं? टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स. क्रॉप्स है, उनको कीड़ा लग जाता है, क्रॉप्स को कीड़ा लग जाता है, कीड़े खा जाते हैं. तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि यू आर यूजिंग पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स. क्या यूज कर रहे हैं? पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स, स्टूडेंट्स. और ये जब हम इनका यूज करेंगे कंज्यूमर, तो हमारे बॉडी में ये चले जाएंगे. क्या चले जाएंगे? केमिकल्स. सो दे विल आइदर बी वॉश डाउन इनटू सॉइल और इनटू वाटर बॉडीज. तो ये कहां पर पहुंचेंगे केमिकल्स? ये केमिकल कहां पहुंच रहे हैं? या तो सॉइल में, या फिर ये कहां जाते हैं? वाटर बॉडीज में. ये लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, सब में जा रहे हैं, या सॉइल मिट्टी में आ रहे हैं. From soil, these are absorbed by plants along with water minerals, and from other water body, these are taken by aquatic plants. तो soil से ये plants में चले जाएंगे, और plants को हम क्या, ये producers हैं, तो plants से ये कहाँ जाएंगे? फिर consumers में चले जाएंगे.
तो प्लांट्स से कंज्यूमर में चले जाएंगे ये जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड हैं। वाटर बॉडीज में कौन से हैं? ये एक्वेटिक लाइफ जो है, तो एक्वेटिक जो है ये एक्वेटिक प्लांट्स भी हैं और एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं वाटर में। इन द वाटर यू हैव एक्वेटिक प्लांट, तो इनके इनके पास भी पहुंच जाएंगे ये सारे पेस्टिसाइड्स है, केमिकल्स। दिस इज वन ऑफ द वेज इन विच दे एंटर द फूड चेन। ऑल दीज केमिकल्स आर नॉट डिग्रेडेबल। अब ये जो केमिकल्स हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल्स जो भी ये हमारे बॉडी में चले गए या कहीं भी चले गए, सॉइल में, प्लांट्स में, तो ये तो दे आर नॉट डिग्रेडेबल। अब क्या होगा फिर? तो ये कम्युलेट हो जाएंगे एट ईच ट्रॉफिक लेवल। दे आर accumulating एट ईच ट्रॉफिक लेवल। 4 ट्रॉफिक लेवल हमने दिखाया आपको, प्रोड्यूसर से प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये कम्युलेट होंगे एट ईच एज ह्यूमन बीइंग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन द फूड, इन एनी फूड चेन। तो फूड चेन के टॉप लेवल पर कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। हम क्या है? हम तो सब कुछ खाते हैं। आप लोग क्या क्या खाते हैं? आप वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब खाते हैं। आप एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, फ्रूट्स वेजी सब कुछ खाते हैं। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन विल गेट एक्युमुलेटेड इन अवर बॉडी। हमारे बॉडी में क्या होगा? इन अवर बॉडी। तो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में क्या होने वाला है ड्यू टू ऑल दिस पेस्टिसाइड्स वगैरह से? क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो केमिकल्स ये डिग्रेड होते नहीं, तो ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके बॉडी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये सारे के सारे केमिकल्स जो है एक्युमुलेट हो जाएंगे। केमिकल्स हमारे बॉडी में ये सब केमिकल्स चले जाएंगे जो भी है। दिस फिनोमिना इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetable, fruits and even meat contain varying amounts of pesticide residues. They cannot be removed by washing or other means. ये washing और दूसरे तरीकों से भी निकाले नहीं जा सकते। तो एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। आप सोच रहे हैं हम बीमार क्यों हो जाते हैं? अरे जो भी तुम फूड खा रहे हो, जो भी चीजें खा रहे हो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, और वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे आपके बॉडी में, हार्मफुल है। दे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि आप सॉइल में जाते हैं या सी में जाते हैं, वाटर में जाते हैं, वाटर बॉडीज में, और हम पानी भी पी रहे हैं और प्लांट्स वगैरह सब कंज्यूम कर रहे हैं, उनके रेजिड्यूज हमारे बॉडी में चले जाते हैं स्टूडेंट्स। अब ये एक्टिविटी कह रहा है एनसीईआरटी में, क्या कह रहा है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट पेस्टिसाइड्स लेवल in ready-made food items are often seen these days. Some states have banned these products. Debate in groups the need for such bans. अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं स्टूडेंट, ये कहां पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं? दे आर एक्यूमुलेटिंग वेयर? इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स की बॉडीज में आ रहे हैं सारे। दे हैव हार्मफुल एंड टॉक्सिक, टॉक्सिन्स जिन्हें कहते हैं, ये सब टॉक्सिन्स ही हमारे बॉडी में चले जाएंगे। तो फिर इनके बारे में बैन लगाया था। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड इन दिस फूड आइटम? वुड पेस्टिसाइड गेट इनटू आवर बॉडी फ्रॉम द सोर्स थ्रू फूड? यस दे विल गेट, yes they will get into our bodies. Discuss what methods can be applied to reduce our intakes of pesticide. तो क्या करें कि पेस्टिसाइड्स हमारे बॉडी में ना जाएं स्टूडेंट? क्या मेथड यूज करते हो तुम? जो भी चीजें लाते हो वॉश करते हो प्रॉपरली, जैसे कि वॉश करते हो, वॉश विद वाटर। सभी जो भी आप चीजें आप यूज कर रहे हो स्टूडेंट, आप क्या कर रहे हो? क्या करते हैं हम फूड को स्टूडेंट? वॉश करते हैं, वॉश विद वाटर करते हैं बिफोर ईटिंग। वो कहते हैं ना, कोई भी वेजिटेबल्स और जो भी चीजें लाते हो उनको वॉश करो वाटर से अच्छी तरह, बिकॉज देयर आर पेस्टिसाइड्स। और दूसरा क्या है कि ये पेस्टिसाइड्स का यूज बंद करा जाए, इसको कम किया जाए। जो भी पेस्टिसाइड्स आप यूज करो उन्हें कम यूज करो भाई। अगर आप प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज करोगे तो हमारे बॉडी में आएंगे ही आएंगे। दिस इज अ सीरियस प्रॉब्लम स्टूडेंट। तो पेस्टिसाइड लेवल इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमें बहुत सारी हार्मफुल डिसीजेज, कैंसर तक ऐसी डिसीजेज होने वाली, कैंसर वगैरह। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ गया स्टूडेंट। क्वेश्चन 1 ऑन द स्क्रीन। अभी तक मैंने जो आपको बताया ट्रॉफिक लेवल्स जो बताए, कितने आपको ट्रॉफिक लेवल हमने बताया? 4 ही दिखाए हैं। एक प्रोड्यूसर दिखाया मैंने स्टूडेंट सबसे नीचे, ठीक है। पहले सनलाइट, फिर प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। इस तरह से 4 लेवल हमने दिखाए: प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर।
और एनर्जी कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है हर एक लेवल पर। और तो व्हाट आर द ट्रॉफिक लेवल्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन एंड स्टेट द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन इट। आपके पास है 2 मिनट का वक्त इसको आंसर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? व्हाट आर ट्रॉफिक लेवल्स? तो हमने क्या बताया कि देर आर series, there are various series of organisms feeding on one another. ठीक है, these series of organisms, ठीक है, these series of organisms taking part in various biotic levels, form food chain। ये क्या करते हैं, एक फूड चेन को फॉर्म कर लेते हैं। the steps or levels of food chain, the steps or levels of food chain, ठीक है, the steps or level of food chain are called trophic levels, give an example। अब ये कह रहा है एग्जाम्पल दो, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो। ये ग्रास है, इसको किसने खाया स्टूडेंट? डियर ने। डियर ईट्स द ग्रास, डियर इज ईटन बाय द लॉयन। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, 3, 1 स्टेप 2 स्टेप, ये 3 स्टेप में दिख रहा है फूड चेन। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, दिस इज आवर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जो ग्रास प्रोड्यूस हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। और ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, दिस इज माय सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। तो डियर ये क्या है? ये दिस इज कॉल्ड ए प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर। ये कौन से होते हैं? हर्बीवोर कौन से खाते हैं? घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, हर्बीवोर। और लॉयन जो है, ये कौन सा फिर आया? थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर आया लॉयन स्टूडेंट, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो ये एक तरीके से लॉयन क्या है? लार्जर कॉर्निवोर है, तो इस तरह से डिफरेंट लेवल्स हैं, ट्रॉफिक लेवल, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इस तरह से ये ट्रॉफिक लेवल चल रहे हैं स्टूडेंट। समझ में आ गया आपको? नोट कर लो आंसर, इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि अब जो पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, नोट कर लो। ये भी नोट कर लो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले, नोट कर लो। यू आर सब्सक्राइब द चैनल, नोटिफिकेशन है कि आपको मिलता रहेगा सारा, जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं, जो भी सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सब मिल जाएंगे। आप सारे क्वेश्चन आंसर देख लेना, डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम, और एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो भी एनसीईआरटी के वो भी सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट चैप्टर्स के। यू कैन गेट इट इन माय यूट्यूब चैनल। व्हाट इज आवर रोल? क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन ये कई बार पूछा पेपर में, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजिशन इन इकोसिस्टम? आपके पास 1 to 2 minutes हैं to answer the question. You are right now, when I am taking a class, you can use your NCERT book.
no problem, open it, see from where the question is coming. And this is a time when we are learning. Student is a learning time. I'm not taking a test at this point. Test I will take separately. जो भी क्वेश्चन भेज रहा हूँ उनको सॉल्व करके भेजिए मेरे को वापस व्हाट्सएप पे, जबकि फिर डायरेक्ट क्लासेस शुरू हो जाएंगी वेरी सून, तो यहाँ पर आप मेरे पास आएंगे तो देन आई विल टेक। करिए, व्हाट इज द रोल ऑफ डिकम्पोजिटर्स इन द इकोसिस्टम। तो पहला क्या है, जो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ये रोल पूछ रहा है, रोल पूछ रहा है, डेफिनेशन तो नहीं पूछी व्हाट इज द डिकम्पोजिटर। अगर ये पूछता व्हाट इज द डिकम्पोजर, हमने डिफाइन किया, तो डेड मैटर और ऑर्गेनिक मटेरियल को वो डिकम्पोज करते हैं इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स टू फॉर्म न्यूट्रिएंट्स फॉर द सॉइल। तो डिकम्पोजर्स का रोल क्या है, ये रोल पूछ रहा है। क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आंसर है दैट बी गिवन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन द पेपर। स्टूडेंट, व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, question is different, answer they are writing different, 0 marks for that. Marking scheme I have shown how marking scheme is there, उस तरह से आंसर करने हैं। नंबर 1 नंबर, तो decomposers are student natural, एक तरीके से ये क्या है, नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स है। कोई चीज डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड है, ये एनिमल्स वगैरह सब मर जाते हैं, जो डिकेइंग चीजें हैं, डिके करके चीजें गिर जाती हैं, उनको क्लीन कौन करेगा, कौन क्लीन करेगा? क्या कि डेड से सारी चीजें पड़ी रहेंगी तो क्या होगा उनका, फिर बहुत प्रॉब्लम। तो इनको क्लीनिंग करने के लिए ये डिकम्पोजेशन होते हैं। नंबर 2, फिर ये क्या काम कर रहे हैं, दे एक्ट एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, दे आर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ठीक है, दे एक्ट एज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है, एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, दे विल ब्रेक, ठीक है, दे विल ब्रेक डाउन, ठीक है, दे विल ब्रेक डाउन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है, इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, which can act as nutrients in the soil, तो सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट्स एक्ट करते हैं। तो इन दिस वे दे क्रिएट ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। तो डिकम्पोजर्स क्रिएट ए बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, बैलेंस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड कंप्लीट द what they are doing, they are completing the food chain cycle। तो फूड चेन साइकिल को वो कंप्लीट कर देते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि कैसे आंसर करने हैं। नोट करना, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सेकंड पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट आ गया स्टूडेंट, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। देखो यहाँ पे आजकल की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडस्ट्रीज आर देयर, पोल्यूशन इज देयर, डेली यू आर यूजिंग कार स्टूडेंट, व्हीकल पोल्यूशन, ये क्या कर रही है? कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन, डिफॉरेस्टेशन टेकिंग प्लेस, फॉरेस्ट में आग लग रही है, फायर्स हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, इसको काट काट के आप बहुत क्या क्या कर रहे हो, बहुत सारी बिल्डिंगें बना रहे हो, ये सारा क्या हो रहा है? वो रेन फॉरेस्ट है, दे आर you see they are being used for commercial purposes, माइनिंग कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो हमारी एक्टिविटीज क्या है, क्या हमारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं? आंसर इज यस। तो ह्यूमंस इंपैक्ट फिजिकल एनवायरनमेंट इन मैनी वेज। ओवर पॉपुलेशन, देखो एक तो ओवर पॉपुलेशन हो गई है,
ओवर पॉपुलेशन क्या है, आपके पास है 130 करोड़ पीपल। अब इतने सारे लोग हैं तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी स्टूडेंट, यूर नीड्स बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए आपको, सारी रिसोर्सेज जितनी भी हैं वो तुम यूज कर रहे हो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सब यूज कर रहे हो। तो इसके लिए तुम इंडस्ट्रीज लगाओगे, फॉरेस्ट को काटोगे, घर बनाओगे, सब कुछ करोगे, क्या करोगे फिर? ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए। सेकंड क्या हो रहा है, तो ओवर पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम है, हमारी कंट्री की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, 130 करोड़ पीपल। सेकंड क्या हो रहा है कि हमारी एक्टिविटीज से पोल्यूशन हो रही है। आपने सुना है एयर पोल्यूशन, यू हैव हर्ड अबाउट वाटर पोल्यूशन, पानी को भी अंदर हम गंदा कर रहे हैं, एयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। और क्या हो रहा है, बर्निंग कर रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल्स की। फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, ये जो आपका डिकेड मैटर है, प्लांट्स का, डिकेड बॉडीज का, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब कोले को जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, सब कुछ फॉसिल फ्यूल्स आप बर्न कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं फिर हम, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं और काट के वहां पे शहर बसा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, सॉयल इरोजन हो रहा है, ये सारी चीजों से सॉयल इरोजन हो रहा है स्टूडेंट। सॉयल इरोजन मतलब सॉयल ही खराब हो जाएगी आपकी, तो प्लांटेशन क्या होगी फिर। और एयर पोल्यूशन हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रही है, और वाटर पोल्यूशन हो रही है, जो एयर और वाटर पोल्यूशन हो रही है, ये सारी क्या हो रही है फिर, ये एक्टिविटी से एनवायरनमेंट क्या हो रहा है हमारा, अवर एनवायरनमेंट इज गेटिंग deteriorated and serious threat to the human health. Majority of air pollution is a result of human activities, increased fossil fuel combustion करे जा रहे हो, जलाए जाते हो, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स। एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सब एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। वेरी वेरी हार्मफुल एंड पॉइजनस गैसेज आर बीइंग थ्रोन इनटू द एटमॉस्फेयर। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट्स activities of a man are affecting the environment। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे हमारी एक्टिविटीज हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन लेयर स्टूडेंट। ये ओजोन लेयर क्या होती है, व्हाट इज ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग लेयर। व्हाट इज ओजोन लेयर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन उसने एमसीक्यू में भी दिया, उसके अंदर भी दिया पेपर में, ओजोन लेयर के। ओजोन एक गैस होती है स्टूडेंट, उसका फार्मूला है O3, 3 एटम ऑक्सीजन के बन के ये ओजोन बनी, ओजोन। अब ओजोन लेयर इज अ रीजन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फियर, अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर, अर्थ के कई लेयर्स हैं, स्ट्रेटोस्फियर की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रेटोस्फियर, उसमें क्या है, ओजोन है, O3। ये क्या करती है, इट कैन एब्सॉर्ब स्टूडेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो आ रही हैं स्टूडेंट सन से, सन के अंदर, वो इसको एब्सॉर्ब कर लेता, ये क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेता। तो उससे क्या होगा, इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नहीं तो क्या होगा, अगर ये हमारे बॉडी के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ जाएंगी, देन इट विल डैमेज अवर बॉडी स्टूडेंट, कैन कॉज कैंसर आल्सो। ओजोन एक्ट्स एज ए स्क्रीन फॉर यूवी रेडिएशन इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जोन की बात कर रहा हूं मैं। 99% of the incoming solar UV is screened by the ozone layer. Without ozone layer, life on Earth would not be possible. अगर ये ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, अगर ये खत्म हो जाएगी स्टूडेंट, तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं आपके अर्थ, ये हमारा सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये 10 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर पे नहीं ओजोन चाहिए हमें, ये स्ट्रेटोस्फियर है, कहां पर है, 40 किलोमीटर। तो 99% ऑफ द अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन इज स्क्रीन्ड इन ओजोन लेयर। यहाँ पे ओजोन लेयर देख रहे हो स्ट्रेटोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर ये इसको ऑब्जॉर्ब कर लेती है ओजोन। ये स्ट्रेटोस्फियर में ये कितना है, 10 किलोमीटर, ये
15 या 40 किलो इस रीजन में है जो एब्जॉर्ब कर लेती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, तो इट इज ए गुड प्रोटेक्शन. Ozone layer is naturally found in upper part of the atmosphere called stratosphere. Important stratosphere बार बार बता रहा हूं मैं. It is created when ultraviolet radiation sunlight strikes the stratosphere, dissociating or splitting of oxygen to atomic oxygen. The atomic oxygen quickly combines with further oxygen to form ozone. तो ये स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पर ओजोन फॉर्म होती है विच इज 10 to 50 किलोमीटर. ये 0 to 10 किलोमीटर का जो है हमारा ट्रोपोस्फीयर, अर्थ ट्रोपोस्फीयर, और इस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर फॉर्म होती है. तो जो ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट, ये डिसोशिएट कर जाती है, ये रेडिकल्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो इसमें डिसोशिएट कर गई और फिर ये जो ओजोन है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये बनाते हैं ओजोन. तो आपकी एनसीईआरटी में उसने इस चीज को शो किया हुआ है कि ये अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये रेडिकल मैं अभी इसको ऐसे नहीं शो कर रहा, मैं सिर्फ आपको ऑक्सीजन एटम दिखा रहा हूँ. ये इसमें टूट गया, ठीक है. इन हायर क्लास वी विल टेल यू एवरीथिंग. अभी 10th क्लास के लिए यही बहुत है कि ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो टूट गए हैं 2 ऑक्सीजन एटम्स के अंदर, और फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन और ये आपस में कंबाइन कर जाते हैं, दे विल कंबाइन इन स्ट्रेटोस्फीयर, और ये बन जाता है ओजोन. व्हाट इज दिस? ओजोन. इसमें देयर आर 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ये जो ओजोन होती है ये एब्जॉर्ब कर लेती है स्टूडेंट हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. दिस कैन एब्जॉर्ब harmful UV radiation coming from the sun in stratosphere. ये सब स्ट्रेटोस्फीयर की बात बता रहा हूं मैं. तो फिर ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे पास. तो ये क्वेश्चन उसने पूछा था एग्जाम में, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड? ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, while oxygen which normally refer oxygen is essentially for all aerobic forms of life. ओजोन इज अ डेडली पॉइजन. वैसे ये जो ओजोन होती है बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है स्टूडेंट. अगर ये हमारे अर्थ के ऊपर नीचे वाली जोन में आ गई तो ये पॉइजन है. देखो यहाँ पर अगर ये ट्रोपोस्फियर में आ गई तो पॉइजन है इस जोन में. ये स्ट्रेटोस्फियर में है जो हमारे 10 किलोमीटर के बाद एरिया आता है. However, at higher levels of atmosphere, ozone performs an essential function. It shields the surface of Earth from ultraviolet radiation, which is damaging to the organism, and this ultraviolet can cause skin cancer in human beings. तो ओजोन एट हेवन इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन है, यूवी रेडिएशन इसे डिसोशिएट कर दिया. दिस ऑक्सीजन इज डिसोशिएटेड इनटू ऑक्सीजन एटम्स, एंड देन दिस ऑक्सीजन एटम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ठीक है, to form a molecular oxygen O3 which is called the ozone. तो ये इक्वेशन है, एग्जाम में लिखनी पड़ेगी. कैसे फॉर्म हुई है ओजोन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड. अब प्रॉब्लम क्या आ रही है स्टूडेंट्स? ओजोन डिप्लीशन हो रही है. व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव हर्ड अबाउट ओजोन होल आल्सो स्टूडेंट, कि when chlorine and bromine atoms come in contact with ozone in stratosphere, they destroy the ozone molecules. तो stratosphere में इसकी जरूरत है. कहां पर है? stratosphere. जो stratosphere, in stratosphere layer of the earth, this is required O3. लेकिन जब bromine and chlorine के atoms आएंगे, they will dissociate ozone. इसको वो डिप्लीट डिस्ट्रॉय कर देंगे ओजोन मॉलिक्यूल्स को, then naturally created. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये प्रोड्यूस हो रही थी, लेकिन जब ये वाले एटम मिल गए क्लोरीन ब्रोमीन, ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे. सम कंपाउंड्स रिलीज क्लोरीन और ब्रोमीन व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू इंटेंस यूवी इन स्ट्रेटोस्फीयर. सो द मेन कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज ओजोन होल. इसी को ओजोन होल कहा जाता है. मैन्युफैक्चर्ड केमिकल्स जो है, जो केमिकल्स हम यूज करते हैं स्टूडेंट, कहाँ यूज कर रहे हैं, स्पेशली मैंने हेलो कार्बन रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेशन में भी हम यूज करते हैं स्टूडेंट. रेफ्रिजरेटर्स जो है हमारे रेफ्रिजरेंट्स हैं, उनके अंदर भी कुछ हम यूज कर रहे हैं. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनका क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ये वाले जो केमिकल्स हैं
they react with ozone and destroy it. ठीक है, halons. They observed reduction in stratospheric ozone and it was found to be prominent in polar regions. OD substances, तो ये substances जब हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स रेफ्रिजरेंट्स में, परफ्यूम्स में और जो भी जेट एयरवेज वगैरह में से, तो ये ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर क्या होता है कि ओजोन का अमाउंट कम हो जाता है. तो ओजोन लेयर हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, एनवायरनमेंट एंड मैरीन लाइफ. अगर ये ओजोन की होल बढ़ गया तो इट इज हार्मफुल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ एज वेल एज एक्वेटिक. तो ये कह रहा था अमाउंट ऑफ ओजोन इन एटमॉस्फेयर बिगैन टू ड्रॉप शार्पली इन 1980. The decrease has been linked to synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, CFCs, which are used as refrigerants and in fire extinguisher. In 1987, UN program succeeded in agreement to freeze CF production at 1986 level. It is mandatory for all manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world. तो इसको उन्होंने बैन कर दिया. अब एक्टिविटी कह रहा है फाइंड आउट फ्रॉम द लाइब्रेरी इंटरनेट विच केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. ये आपको हमने बता दिया. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्या नाम है, फ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर. Find out regulation put in place to control emission of these chemicals have succeeded in reducing damage to the ozone layer. Has the size of ozone changed in recent years? तो बिकॉज ये जो बैन लगे हैं उससे ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओजोन होल को, ताकि बहुत बड़ा ओजोन होल ना बन जाए. अगर ये बन गया तो फिर ये सीरियस थ्रेट है एक्वेटिक लाइफ को भी और ह्यूमन लाइफ को भी, अर्थ के ऊपर. अब एक क्वेश्चन ये आया था, वेयर इज द ओजोन लेयर हार्मफुल? ओजोन occurs in two layers of atmosphere. The layer closest to earth surface is called troposphere. अगर ये ट्रोपोस्फियर में आ गई स्टूडेंट तो O3 जो है ये हार्मफुल है, ये पॉइजन है, हार्मफुल है. हेयर ग्राउंड लेवल और बैड ओजोन, इसे बैड कहते हैं, इन एयर पोल्यूटेंट इज हार्मफुल टू ब्रीथ एंड इट डैमेजेस क्रॉप्स, ट्रीज एंड वेजिटेबल्स. तो ये ब्रीदिंग में सीरियस प्रॉब्लम करेगी. ओजोन इज कंसीडर्ड टू बी डेडली पॉइजन बिकॉज इट नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज द लंग्स, generates a number of respiratory problem, but it also causes acute chest pain, shortness of breath, allergic reaction in various of part of the body, bronchitis, problematic heart and asthma. तो अगर ये ओजोन हमारे लोअर लेयर में आ गई ट्रोपोस्फियर में तो ये बहुत डेंजरस है, ये पॉइजन है. तो ये आप देख रहे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी. लंग्स, इट विल डिस्ट्रॉय अवर लंग्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, बहुत डेंजरस है, इट इज अ पॉइजन. अब ये क्वेश्चन आ गया था, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर. मैं इसलिए बताता हूँ इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट आपके एग्जाम के लिए. एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग डेडली पॉइजन कैन स्टिल परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन फॉर द एनवायरनमेंट. Ozone layer is harmful because it is a mixture of 3 oxygen atoms that make it highly reactive, which is not good for the human body. ये हमारे बॉडी के लिए अच्छी थोड़ी है. अब बॉडी में आएगी तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह सब क्रिएट करेगी. बट नेसेसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अर्थ सरफेस फ्रॉम द सन्स एंट्री ऑफ यूवी रेज एंड कैन डैमेज अस बाय कॉजिंग. तो कौन से स्फीयर में ये होनी चाहिए और है, और कौन से में नहीं होनी चाहिए. अब आपको पता लग गया कि अर्थ का, अगर ये हमारे लोअर पार्ट पे आ जाती है, अर्थ के ट्रोपोस्फियर में आएगी तो पॉइजन, ट्रोपोस्फियर में पॉइजन है. लेकिन ऊपर जो आई है स्ट्रेटोस्फियर में, इट सेव्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन which can cause and damage our skin and skin cancer and so many other problems. So this ends up the topic today student, which is very important. Ye ozone depletion, ozone layer and all this is very important, how the ozone is produced and how it is protecting our environment. तो फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय बाय.